today's topic is different type of architectural term. It is very important topic for different architectural exams like JBR and NATA exam. So let's start. So our first architectural term is amphitheater. What is amphitheater? An amphitheater is an open air venue used for entertainment, performances, and sports. A free-standing building of round or more often oval shape with a circular area, the arena, and the seats placed around it. So, this is the most famous example of amphitheater, the Colosseum. It is the largest ancient amphitheater ever built and it is the largest standing amphitheater in the world. कोलोसियम रोम इटली में बना हुआ है, तो ये कुछ इस टाइप से दिखता है. अगर हम एक्सटर्नल इसका देखें, एक्सटीरियर इसका देखें, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट दो आर्किटेक्चरल टर्म यूज करके गई है फ्रॉम रोमन आर्किटेक्चर, द आयोनिक कॉलम एंड सर्कुलर आर्चेस. तो दिस इज द बेसिक ड्राइंग ऑफ कोलोसियम एम्फीथिएटर. अंदर से ये कुछ इस तरीके से दिखता है, सेमी सर्कुलर सीट से. Then next architectural term is arc. An arc is a form of structure found throughout much of the architecture. It is used a curve to span a space from the 2 points. There are a few different kind of arches and they can be made in many materials, but the core structure concept is always the same. So this is the example of different type of arches used in different architecture and culture. So first example is semicircular arches using brick or stone block construction at the Great Wall of China. Great Wall of China में अगर आप वॉच टावर्स को देखोगे तो वो इस तरीके के कॉन्सेप्ट पे बने हुए हैं, उनमें अंदर उनमें सेमी सर्कुलर आर्चेस का यूज करा है. सेकेंड एग्जाम्पल है रोमन आर्किटेक्चर से द एक्वेडक्ट्स. सो यहाँ पर ये एक ब्रिज है जिनमें उन्हें सर्कुलर आर्चेस का यूज करा है. Our third example is interior vaulted ceiling of Notre Dame. Notre Dame की अगर आप सीलिंग देखोगे तो इनमें उन्होंने ribbed wall का यूज करा है. And the fourth is modern architectural example. इनमें उन्होंने parabolic arch का यूज करा है. So this is the example of different type of arches used in different architecture. ये है basic structure कि आर्क को बनाने के लिए और क्या डिफरेंट आर्किटेक्चरल टर्म्स का यूज करना पड़ता है. बायोमिमिक्री. तो द टर्म बायोमेट्रिक आर्किटेक्चर रिफर टू द स्टडी एंड द एप्लीकेशन ऑफ द कंस्ट्रक्शन प्रिंसिपल्स व्हिच आर फाउंड इन नेचुरल एनवायरनमेंट्स एंड स्पेसेस एंड आर ट्रांसलेटेड इनटू द डिजाइन ऑफ सस्टेनेबल सॉल्यूशन फॉर आर्किटेक्चर. सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ बायोमिमिक्री. बेसिकली नेचर से इंस्पायर होकर उसका यूज करना इन आर्किटेक्चर में, इट इज कॉल्ड बायोमिमिक्री. तो द फर्स्ट एग्जांपल, सेकंड एग्जांपल देखो सिंगापुर के एयरपोर्ट का वाटरफॉल है. थर्ड एग्जांपल अगेन इंस्पिरेशन फ्रॉम ट्री. बटरेस. तो बटरेसेस इज एन आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर बिल्डिंग अगेंस्ट या प्रोजेक्टिंग फ्रॉम अ वॉल which serve to support or reinforce the wall. Buttresses are common on more ancient building. Buttresses वो आर्किटेक्चरल टर्म है जो स्पेशली गॉथिक आर्किटेक्चर में बहुत यूज करते थे. So this is called buttresses. एक एक्सटर्नल सपोर्ट होता है बिल्डिंग को, इसको बोलते हैं बटरेसेस. तो ये डिफरेंट टाइप की बटरेसेस है. अब हम देखते हैं फेमस एग्जांपल. तो both the examples are from Gothic architecture. First is Notre Dame Cathedral, Paris, France, and second is Duomo, Milan, Italy में बना हुआ है. और कितना ornamentation करा हुआ है buttresses के ऊपर. So this is the two basic example. Third is canopy. A canopy in architecture, projecting hood या cover suspended over an altar, statue or niche. A canopy is an overhead structure typically intended to provide shelter from a rain or sun. It is usually seen as a covering attached to the outside of a building, or it is also
used for a decorative purpose and to emphasize a root or a part of a building. So this is the famous example of different type of canopies used in different architecture. तो बेसिकली ये एक्सटर्नल सपोर्ट है जो आपको सनलाइट से प्रोटेक्ट करता है, रेन से प्रोटेक्ट करता है. नेक्स्ट हमारी जो आर्किटेक्चरल टर्म है इज डोम. तो मोस्टली डोम का यूज होता था इन एंशिएंट रोमन आर्किटेक्चर और उसी से इंस्पायर होके रेनेसां आर्किटेक्चर में भी डोम का यूज देखने को मिला है. तो डोम क्या होता है? एक हेमिस्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है जो सीलिंग और रूफ में फॉर्म होता है. तो ये डिफरेंट टाइप के डोम्स है जो डिफरेंट आर्किटेक्चर्स में यूज करे गए हैं. अनियन डोम, मोनोलिथिक डोम, बिहेव डोम, हेमिस्फेरिकल डोम और या केबल नेट डोम. So this is the example of different type of dome. First example is Saint Basil Cathedral from Moscow, Russia. अगर आप दूसरे डिफरेंट इस्लामिक आर्ट के डोम भी देखोगे तो वो आपको अनियन शेप में देखने को मिलेंगे. तो ये डोम का शेप है अनियन शेप डोम. सेकंड एग्जांपल इज हागिया सोफिया, इस्तांबुल, टर्की. इसमें हमने थोड़ा सेमी सर्कुलर डोम का यूज करा है. थर्ड एग्जांपल इज रेनेसां आर्किटेक्चर, फ्लोरेंस कैथेड्रल, इटली का एग्जांपल है. एंड फोर्थ एग्जांपल इज फ्रॉम इंडियन आर्किटेक्चर, द ग्रेट स्तूपा ऑफ सांची. So this is the different domes used in different architectural and cultures. Second is, next is vault. Vault is a self-supporting art form, usually of a stone or brick, serving to cover a space with a ceiling or roof. They can be seen anywhere from architecture built in ancient Egypt to architecture from Gothic period in Europe. There are different styles of vault existing in building structures from ancient time to today. So these are the different type of vault: barrel vault, groin vault, rib vault, fan vault, and the basic drawing of the vault. Next is example. फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा नॉर्दर डैम कैथेड्रल का, जहाँ पर उन्होंने रिब्ड वॉल्ट का यूज करा है. तो वॉल्ट इज ऑल्सो कैरेक्टरिस्टिक आर्किटेक्चरल टर्म ऑफ गॉथिक आर्किटेक्चर. सेकंड हमारा एग्जाम्पल है न्यूयॉर्क सिटी हॉल सबवे स्टेशन, जिनमें उन्होंने कैटलन वॉल का यूज करा है. थर्ड एग्जाम्पल है हमारा द नेव एट बाथ एबी, इंग्लैंड में जो एबी बनी हुई है उनमें उन्होंने फैन वॉल्ट का यूज करा हुआ है. सो दिस आर द डिफरेंट एग्जांपल ऑफ डिफरेंट वॉल्ट्स यूज्ड इन डिफरेंट आर्किटेक्चर. नेक्स्ट, लुवर्स, एन अरेंजमेंट ऑफ पैरेलल या हॉरिजॉन्टल ब्लेड्स, वो किसी भी मटेरियल की बनी हुई हो, इनको बोलते हैं लुवर्स. इट इज ऑल्सो लाइक कैनोपी, और ये डिफरेंट टाइप की लूवर्स है, जैसे रेन डिफेंस लूवर्स, वेंटिलेशन लूवर्स, स्क्रीनिंग लूवर्स एंड मेनी मोर. So this is the example of luvers. Next is ornamentation. An ornamentation is a form of decorative detail that is elegant enough to beautify and symbolize any object of a part of it. Ornamentation can give royalty, especially in the older time, and with that it made a mark of its symbolic, functional and even cultural value. In architecture, ornamentation can be decorative identification of a structure. So this is the example of ornamentation in architecture. So first two example is from Gothic period and third example is from Indian architecture. ये दो इनिशियली जो गॉथिक पीरियड के एग्जाम्पल है ये नॉर्दर डैम कैथेड्रल के हैं एंड थर्ड एग्जाम्पल इज फ्रॉम खजुराहो टेम्पल, इंडिया. थैंक यू सो मच एवरीवन. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी. इसके अलावा और डिफरेंट टाइप की आर्किटेक्चरल टर्म्स होती है. इसको जानने के लिए आप हमारी नेक्स्ट वीडियो को वॉच कर सकते हो. थैंक यू सो मच एवरीवन.